नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। प्रधानमंत्री न गुजरात में एक अहम योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरे देश के जरूरतमंद मरीजों के लिए मामृतम स्कीम के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में लागू किया गया। आज के इस कार्यक्रम में अब हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप रिमोट का बटन दबाकर आयुष्मान भारत पीएम जय मां देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को बड़ी अस्पतालों में आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। કેમ છો ગુજરાત? કેવી છે તબિયત? જુઓ છો ને, નિખાલસતાથી હસતા આ ચહેરાઓને. આ લોકો આટલા બધા ખુશ કેમ છે? મને ખબર છે, એનિવર્સરી છે, 10મી એનિવર્સરી માં યોજનાની, એટલે કે મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજનાની. આજથી 10 વર્ષ પહેલા જ્યારે ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને હાલમાં દેશના શ્રદ્ધેય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ માં યોજનાની શરૂઆત કરી હતી, જેનો ઉદ્દેશ્ય હતો રાજ્યના અતિ સામાન્ય લોકોને ગંભીર બીમારીઓના કિસ્સામાં થતા મોટા ખર્ચ સામે રક્ષણ અને ભરોસો આપવાનો. આ જ યોજનાની સફળતાના સથવારે ગુજરાત સરકારે મધ્યમ વર્ગની માંગણીને પણ ધ્યાને લીધી અને 2014માં અમલ કર્યો માં વાત્સલ્ય યોજનાનો. તો સ્વસ્થ ભારતના સ્વપ્ન દ્રષ્ટા પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ વર્ષ 2018-19માં આહવાન કર્યું સર્વસમાવેશી આયુષ્યમાન ભારત પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજનાનું, જેના થકી દેશભરના યાદીમાં સમાવિષ્ટ પરિવારોને કુટુંબ દીઠ રૂપિયા 5 લાખ સુધીનું આરોગ્ય સુરક્ષા કવચ પૂરું પાડવામાં આવે છે. તો બીજી તરફ ગુજરાત સરકારે 2019થી મુખ્યમંત્રી અમૃતમ અને માં વાત્સલ્ય યોજનાના લાભાર્થી પરિવારોને પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજનાનો પણ લાભ મળે એ હેતુથી મર્જ કરેલી યોજના એટલે પીએમ જય માં યોજના. ગુજરાત રાજ્યમાં કુલ 2.89 કરોડ મુખ્યમંત્રી અમૃતમ માં વાત્સલ્ય અને પીએમ જયના લાભાર્થીઓને આયુષ્માન કાર્ડ આપીને સરકારે કરી છે જન જનના આરોગ્યની દરકાર. લાખો ગરીબો અને જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને પીએમજેવાય માં યોજના દ્વારા રૂપિયા 5 લાખ સુધીની સારવાર નિઃશુલ્ક મળે છે. કુલ 8,000 કરોડના ખર્ચે લાભાર્થીઓને ફરી મળ્યું સ્વસ્થ જીવન. ચિરંજીવી યોજના અને નવજાત શિશુઓ માટેની બાલ સખા યોજના પણ થઈ પીએમ જય માં યોજના સાથે सम्मिलित. જૂનો પેપર અને ડિજિટલ પીડીએફની જગ્યાએ નવા પીવીસી કાર્ડ આપવાની શરૂઆત કરી. કેવાયસી વેરિફિકેશન બાદ પ્રથમ તબક્કામાં જ 50 લાખ કાર્ડનું ગામે ગામ જઈને થશે વિતરણ. છેલ્લા એક વર્ષમાં 12,803 કરતા વધુ દર્દીઓને મફત ડાયાલિસિસની સારવાર. હોસ્પિટલે આવવા જવાના ભાડા પેટે રૂપિયા 300નો લાભ. 55,200 કરતા વધુ દર્દીઓની કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીઓ સામે ચાલી રહી છે સારવાર. 600 જેટલા લાભાર્થીઓનું કિડની, લિવર, ગર્ભાશય વગેરેનું થયું ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન. ગુજરાતની બેનમૂન કામગીરી બદલ અનેકવિધ નેશનલ લેવલના એવોર્ડ્સ પણ થયા છે એનાયત. गुजरात में आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री अमृतम योजना एक साथ मिलकर गरीबों की चिंता और बोझ कम कर रही है। यही डबल इंजन सरकार की ताकत होती है। आयुष्मान कार्ड से बहुत लाभ हुआ है और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हमको मिली है. टाइम टू टाइम चेक करवा આવતા હતા. 3 લાખનો ખર્ચો થયો પણ માફ થયો. આવવા જવાનું ભાડું 300 રૂપિયા આપવામાં આવતું હતું. કાર્ડ હતું તેમ મને બધી મુફ્ત સારવાર મળી છે. मेरा बहुत बड़ा इलाज बहुत सस्ते में हो गया. કે મોદી સાહેબનો આભાર કે આ સેવા આપી એમને. વાહ, જોયું ને? હવે સમજાયું ગુજરાતીઓના ચહેરા પાછળનું આ હાસ્ય. પીએમ જય માં થકી સ્વસ્થ છે ગુજરાત. નાગરિકોના આરોગ્યની કરે દરકાર ડબલ એન્જિનની આ સરકાર. ધન્યવાદ. માન્યવર,
आपकी प्रेरक वर्चुअल उपस्थिति व अनुमति के साथ अब हम विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इस अवसर पर यहाँ पर पधारे लाभार्थियों को आयुष्मान पीवीसी कार्ड का प्रतीकात्मक वितरण करवाएं। मंच पर आमंत्रित करते हैं लाभार्थी इंदुबेन वाघेला, रबारी जामबेन और भरत भाई पटेल को। इसी के साथ गांव-गांव में कैंप के द्वारा अब 50 लाख आयुष्मान कार्ड का वितरण होगा। इस स्वास्थ्य सुविधा पाने के लिए सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। ये है हमारे लाभार्थी भरत भाई पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मंचासीन महानुभावों का। आज इस सभागार में गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से आए कुछ लाभार्थी भी उपस्थित हैं, जिनके साथ संवाद करने के लिए अब हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। सबसे पहले हैं हमारे बनासकांठा से पधारे लाभार्थी पीयूष भाई तुवर। नमस्कार सर। पीयूष भाई नमस्ते। પીયુષભાઈ તમારી બાબતમાં જરા મને કહો શું છે? સર મારે હૃદયનું ઓપરેશન કરાવવું છે યુએન મહેતામાં અમદાવાદ। થઈ ગયું ઓપરેશન કે થવાનું છે? હા ઓપરેશન થઈ ગયું એકદમ। ક્યારે થયું? સારું 9 તારીખે। ઉંમર કેટલી પીયુષભાઈ તમારી? મારી 23 વર્ષ સાહેબ। અને બનાસકાંઠામાં ક્યાં રહો? સોઈગામ। અચ્છા, અને આ બીમારી ક્યારથી હતી? બીમારી સાહેબ નાનપણથી હતી। નાનપણથી હતી? હા। અને પછી કઈ ઉપચાર ના કરાયો? આ સર અમને ખબર નથી પડી એટલે। અને પછી શું આ પહેલા ગયા હશે ડોક્ટર, બધા ઘણા પૈસા વિસા માંગતા હશે, શું હતું? તપાસ કરી હતી? હા સર તપાસ કરી એટલે અમે આયુષ્માન ભારત કઢાવ્યું, પછી વિના મૂલ્યે અમારે ઓપરેશન થઈ ગયું। એના બદલે હું તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। તમારી પાસે આયુષ્માન કાર્ડ ના હોત તો શું થયું હોત? તમે કઈ ડોક્ટરોને પૂછ્યું તું શું સ્થિતિ હતી? હા તો સર ખર્ચો બહુ થયો, 2.5 લાખ રૂપિયા થઈ ગયો। બાપુજી શું કરે છે? પપ્પા હીરામાં છે। હીરાનું કરે છે? હા સુરતમાં? સુરતમાં। સુરતમાં। અને તમે પીયુષભાઈ શું ભણ્યા? હું 12 ભણી રહ્યો છું। પણ તમારું તો શરીર સાવ નંખાઈ ગયેલું લાગે પેલા। હા સર ઓપરેશન પછી આ થોડો કયો, પણ હવે આમ વિશ્વાસ આવી ગયો છે, સરસ થઈ જશે બધું? હા હવે સરસ થઈ જશે। જો પીયુષભાઈ તમારા જેવા દેશમાં લાખો ભાઈ બહેનો એવા છે કે જેમને જો આવી બીમારી આવી જાય અને પૈસા ના હોય, ક્યાં જવું, શું કરવું, ડૉક્ટર પણ કે આવડી મોટી બીમારી તો મફતમાં કરી ના શકે, ગમે તેટલો સેવાભાવી ડૉક્ટર હોય તો બહુ તો 2-5 હજાર રૂપિયા ઓછા કરે। હવે આ સંજોગોમાં તમારા જેવા પરિવારો એટલે આખા ઘરને ચિંતા રહેતી હશે કે ભાઈ આ પિયુષભાઈને આ કેમ સાચવવા, એટલે આખું ઘર મુસીબતમાં રહેતું હશે આટલા બધા વર્ષો સુધી। પરંતુ અમારો પ્રયાસ ન રહ્યો છે કે જેની પાસે સગવડ નથી અને કાંઈ કરી શકે એમ નથી એને એના નસીબ પર મરવા ના દેવાય। અગર તમારું કોઈ નથી તો સરકાર તમારી છે। અગર ગરીબનું કોઈ નહીં હોય તો આ સરકાર તમારી છે। અને એટલે આજે દેશભરમાં ખૂબ સારી હોસ્પિટલોમાં ગરીબમાં ગરીબ માણસની પણ સેવા થઈ રહી છે। અને પિયુષભાઈ મને આનંદ થયો કે તાજેતરમાં જ તમારું ઓપરેશન થયું છે અને આજે તમે સાજાસમ થઈને વાત પણ કરવા માટે અહીં સુધી આવ્યા છો।
और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अदिति हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। इस योजना के बारे में भी उनसे समझेंगे और कितने तक का ये सेहत कवर जो है दिया जाता है, कितनी इसकी अहमियत है और लोगों के लिए कितना ये लाभमंद होता है, ये जानेंगे अदिति से। जी अदिति। देश का प्रधानमंत्री अगर डायरेक्ट उन लोगों से जो कि गरीब तबके से आते हैं या अनप्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं, उनको ये कह देना कि गरीब का जब कोई नहीं होता तो गरीब की सरकार है। देखो, किसी भी सरकार से या किसी भी देश में आप उसके डेवलपमेंट का जब मापदंड देखते हैं तो कैसे देखते हैं? वहाँ के लोगों के पास छत है, वहाँ के लोगों के पास भुखमरी जैसी स्थिति नहीं है, खाना रोटी मिल रही है। और तीसरी बड़ी बात है कि अगर वहाँ के लोग बीमार हैं, देखिए बीमारी ऐसी चीज़ है जिसको टाला नहीं जा सकता, भूख ऐसी चीज़ है जिसको टाला नहीं जा सकता, और छत ऐसी चीज़ है जिसको टाला नहीं जा सकता। जब देश के प्रधानमंत्री जो आज वार्तालाप कर रहे हैं उन तमाम लोगों से, जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में भी एक ऐसी आयुष्मान स्कीम, हेल्थ स्कीम हॉलिस्टिक अप्रोच वाली दी गई थी। और उसके बाद अगर हम आज बात करें तो पूरे देश में अगर हेल्थ सेक्टर में कोई स्टेट सबसे बेहतर काम कर रहा है तो, और अगर आंकड़ों की बात करें कितना इलाज मिल चुका है, और सिर्फ इलाज ऐसा नहीं कि जो छोटा मोटा इलाज हो, आप ट्रांसप्लांट की बात करें, लीवर जैसे जो हाई अप्रोच वाले इलाज है, और वो भी मिनिमम पैसे में। और वो कैसे संभव हो पाया? केवल विजन से हो पाया। जब वो मुख्यमंत्री थे 2012, तब से उन्होंने हेल्थ स्कीम्स प्रोवाइड करी, उसको हर बार बेहतर किया। यहाँ तक कि 2019 में जब वो 2014 में यहाँ पे आकर प्रधानमंत्री बन गए थे, यहाँ पर भी आयुष्मान स्कीम लॉन्च की गई देश भर में, और 2019 में गुजरात को उस आयुष्मान स्कीम से अटैच किया गया। तो आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बैठकर अपने लोगों से गुजरात, देखिए इसके मायने दूसरे भी हैं, ऐसा करना और गुजरात के चुनाव बिल्कुल सिर पर होना, और ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पे देश के प्रधानमंत्री गुजरात के बेटे हैं, और गुजरात में चाहे वो सड़क पे उतरे हैं या वहाँ के लोगों से बात करना, उनसे संपर्क साधना, और वो भी तब जब उनकी हेल्थ के बारे में, उनके परेशानी के दिनों में सरकार के रूप में एक मददगार बनना। लेकिन अब हम स्कीम की बात कर लेते हैं। जी, दरअसल देखिए अलग अलग तरीके की स्कीम निकाली भी गई है, पर कोई भी स्टेट और केंद्र में जब सेम सरकार होती है तो ये हम जानते हैं कि तालमेल बहुत बेहतर होता है। और ऐसे में अगर आप आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 50 लाख वो कार्ड हैं जिसमें आप मिनिमम पैसे पे उस कार्ड को अगर आपके पास है, और 50 लाख से ज़्यादा लाभार्थी हैं जो उस कार्ड के माध्यम से लगभग 8,000 करोड़ का चाहे रिप्लेसमेंट हो चाहे किसी भी तरह का इलाज करवा चुके हैं। तो कोई भी जो राज्य है, अगर हम हायर क्लास की बात करें, वो हॉस्पिटल में जाते हैं, एम्स में जाएंगे या फोर्टिस में जाते हैं या इस तरह की जो बेहतर सुविधा वाले अस्पताल हैं वहाँ पर वॉक इन करते हैं, पैसा देते हैं, इलाज करा लेते हैं या किसी से फ़ोन करवा लेते हैं। लेकिन हमारे देश की ज़्यादा आबादी ऐसी है जो या तो अपने घर से हॉस्पिटल तक पहुँचना तो दूर की बात है, घर में ही दम तोड़ देते हैं। तो ऐसे में कई ऐसे बड़े लाभार्थी, और आज उन लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड एक बार फिर दिया जाएगा। 50 लाख लाभार्थी ऑलरेडी हैं जो उस कार्ड का इस्तेमाल कर चुके हैं, और आज हालांकि प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं और मनसुख मांडविया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी पूरे कार्यक्रम गुजरात में हो रहा है। लेकिन एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया जा रहा है, क्योंकि देश में अगर सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो हेल्थ स्कीम है, और जब केंद्र के साथ जुड़कर ये हेल्थ स्कीम गुजरात में दी जा रही है, उन लाभार्थियों से बातचीत हो रही है कि आपके साथ क्या क्या घटा, और आप आज जो पूरे तरह से ठीक है। आपने और हमने दोनों ने सुना कि जिस व्यक्ति से वो बात कर रहे थे उनसे पूछ रहे थे कि अब तो पूरी तरह से ठीक हो, और उन्होंने भी सरकार को पूरा श्रेय देते हुए कहा, और फिर मोदी ने कहा कि जब किसी गरीब के साथ कोई नहीं है तो मेरी सरकार उसके साथ खड़ी है। तो ऐसे में बड़ी हेल्थ स्कीम, और दरअसल किसी भी राज्य को पावरफुल या नंबर 1 वही बनाता है, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर उसके वहाँ के जो गरीब से गरीब तबका है उसके पास छत है, उसके पास खाने है और उसके पास हेल्थ स्कीम है। सरकार की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर जाकर कहीं सड़क या ब्रिज या स्कूल या तमाम चीज़ें आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। लेकिन ये जो आज की स्कीम है ये देश में भी अगर हम दूसरी तरीके से देखें, और दूसरा अगर चुनावी पॉलिटिकल मुद्दे से देखें तो गुजरात में जो लोगों के दिल तक पहुंचेगी ये बात, और जो आगामी चुनाव है 2023 उसमें भी बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर डालती हुई नजर आएगी। जी चलिए, बहुत डिटेल में आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।